So let's start with this number systems. Now, yesterday in the previous session, we basically did classification of numbers, divisibility, and properties of numbers, right? Today, we are going to study a little more about numbers, although this is unconnected to what we did in the previous session. So there is something that we're going to study is known as factors, and there's something known as multiples. So what are the factors? What do you mean by factor? Factor is something, it's a number which can divide the given numbers completely. That is defined as factors. So let us just take a number n. Let's say we take 90. And I ask you, what are the factors of 90? So what do I mean by this? I mean all the numbers which can divide 90 completely. That is the meaning of factors. For example, if I ask you, what is the factor of 6? 6 is divisible by 1. 6 is divisible by 2. 2 3 is 6. 6 is divisible by 3. 3 2 is 6. Is 6 divisible by 4? 4 1s are 4, remainder is 2. So this is not a factor. But all other numbers are factors because they are dividing the numbers completely. So what are the numbers which can divide 90 completely? Let us look at those numbers. 1 can divide anyway. 2, 3, 4, no, 5, 6, 15, 6 are 90. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सब क्या आएगा इसके बाद? 30, इसके बाद 45. कितने फैक्टर्स हैं? मतलब ये तो यहाँ पड़ा, बंद कैसे हुआ? टैलेंटेड लोग हो यार तुम, प्रोजेक्टर ही बंद कर सकते हो? मेरे घर का टीवी का रिमोट खराब हो गया, बता दो मुझे भी बता दो. तो ये चाइनीज सारे खराब करेंगे इंडिया को ना, चाइनीज फोन. एनीवे तो कितने फैक्टर से गिने? 1 2 12 फैक्टर हो गए. ठीक है. अब ये क्वेश्चन आता है अपने आप में, एग्जाम क्वेश्चन था, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर अ गिवन नंबर. इस केस में लेट्स से 90 वाज द नंबर एंड वी वर एबल टू फैक्टराइज एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स. लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन 900 दे दिया जाते, 245, कुछ भी नंबर हो सकता था, एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स. सो हाउ डू वी फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स? इज समथिंग लाइक दिस. यू फर्स्ट कन्वर्ट 90 इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म. So what is this canonical form? Canonical form is nothing but you first factorize this into basic primes. So this becomes 245, this becomes 315, this becomes 3 5s. So this becomes basically 2 into 3 into 3 into 5, which is basically 2 की power 1 into 3 की power 2 into 5 की power 1. So 90 can actually be written like this. This is known as its canonical form, right? So let us say there is a number n. Right, there's a number n which can basically be written as a की power p into b की power q into c की power r. You understand what I'm saying? What is abc? abc is the fundamental prime number. abc क्या है? बेसिक प्राइम्स है, जैसे 2 3 5. और p q r क्या है? पावर्स हैं. अब कोई जरूरी नहीं है c हमने रोक दिया, हो सकता है a b c d हो जाता और ये पावर s हो जाता. सो नीचे जो a b c d e f है वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, एलिमेंट्री प्राइम्स हैं. और जो बाद में बच गए p q r s t ये हमारे पावर्स हैं, राइट. अब अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 into s plus 1, so on and so forth. This is the formula for finding out number of factors. ये plus 1 क्यों कर रहे हैं मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में जब हम समझेंगे. बट फिलहाल एक बार ये समझ लीजिए कि अगर मुझे किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो मुझे कैनोनिकल फॉर्म लिखना पड़ेगा और +1 करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे p का मतलब क्या है? यहाँ पे 1. a क्या है? देखो, this 2 is being represented by a. This 3 is being represented by B. This 5 is being represented by, is being represented by C. उसी तरीके से ये 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
P को, ये जो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q को, उसी तरीके से मान लेते हैं ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को। समझ में आ रही बात? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे करेंगे, P + 1 + Q + 1 + R + 1, यानी 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 2, so my answer is 12. So these are the 12 factors that we have found out. आ रही बात समझ में? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मान लेते हैं n = मान लेते हैं 270, निकालो इसके कितने फैक्टर्स हैं। ओके, so what do? You factorize 270 can be written as 2 into 135, which will be 3 into, यही बनेगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 1 + 1, 3 + 1 and 1 + 1, so 2 × 4 × 2 is, अगर आप चाहेंगे तो इसके 16 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, कोई भी नंबर ले लो, क्या लेना है बताओ। 135, हाँ कोई नहीं, हाँ तो 3 की पावर 3, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे। आपने कुछ ऑब्जर्व किया अभी तक नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में? मैं कह रहा हूं जितने भी नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आ रहा है। 90 का फैक्टर निकाला तो 12 आ गया, 270 का फैक्टर निकाला 16 आ गया, 135 का फैक्टर निकाला 8 आ गया। सो यस, so what is the observation? The observation is the number of factors that we are trying to figure out is even number of factors, right? अब किसी भी नंबर को मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मान लो मैंने कहा 893 × 5 7, 893 × 4, 4 इज एन इवन नंबर। कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, इवन नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इवन में कन्वर्ट। ये बात समझ में आती है? अब अगर मैं चाहता हूं कि कई सारी चीजों का मल्टीप्लीकेशन ऑड रहे तो कब हो सकता है, अगर प्लस नहीं करना, मेरे को कई सारे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं और उन सारों का प्रोडक्ट मेरे को चाहिए ऑड होना चाहिए, तो कब होगा, ऑड। समझ में आ रहा है? वो नंबर कब होगा, ऑड। अगर सारे नंबर ऑड होंगे तभी उनका प्रोडक्ट भी ऑड होगा। ये बात समझ में आती है? अब 2-3 चीजें इससे बाईपास करके, इसको छोड़ के 2-3 चीजें पूछ लेता हूं ताकि काम में आ जाए। इवन प्लस ऑड कितना होता है, ऑड। इवन प्लस ऑड कितना होता है, ऑड। इवन प्लस इवन कितना होता है, इवन माइनस इवन कितना होता है, ऑड माइनस ऑड कितना होता है, इवन। ऑड प्लस ऑड कितना होता है, इवन। समझ में आ रही बात? ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन, इवन माइनस इवन इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, इवन प्लस ऑड ऑड, ऑड प्लस इवन ऑड, इवन माइनस ऑड ऑड, ऑड माइनस इवन ऑड। यानी एक इवन होगा एक ऑड होगा तभी हम प्लस माइनस में ऑड रहेगा। अगर दोनों सेम होंगे यानी ऑड ऑड होगा तो भी इवन बनेगा, इवन इवन होगा तो इवन तो बनेगा ही। ये बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इवन इंटू इवन, इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू इवन, इवन इंटू इवन, ऑड इंटू ऑड, ऑड। अगर ये सब भूल जाओ तो कैसे करोगे? कोई 2 वैल्यूज ले लेना छोटी छोटी,
और उसको सॉल्व करके देख लो, जो रिजल्ट आएगा वो सबके लिए वैलिड है। ये बात समझ में आती है? अब अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड चाहिए, क्या समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या चाहिए? तो इसका मतलब सारे नंबर क्या होने चाहिए? ये सारे नंबर क्या होने चाहिए? ऑड। ऑड नंबर तब बनेगा जब +1 करेंगे तब ऑड होना चाहिए, पहले ही ऑड होना चाहिए? ऑड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब +1 करके फाइनल रिजल्ट ऑड बनना चाहिए। इसका मतलब P की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इवन। Q की वैल्यू और R की वैल्यू, P Q R क्या थे? इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका मतलब किसी भी नंबर के जो पावर्स हैं अगर वो इवन होंगे तभी और तभी जाके उनके जो फैक्टर्स बनेंगे वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। इन अनदर वर्ड्स आई कैन ऑल्सो से that any number with even powers, any number with even power, if a number is having even power, that means it can always be written as a perfect square. मान लो मैंने कहा 2 की पावर 8, तो मैं 2 की 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूं। 2 की पावर 10, तो मैं उसको 2 5 करके ब्रैकेट करके ऊपर 2 कर सकता हूं। यानी इवन किसी भी नंबर का इवन पावर कर दें, किसी भी नंबर का इवन पावर कर दें, दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड आ गए, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ गए, तो इंटरप्रिटेशन क्या है? द नंबर इज अ perfect square. If a number is a perfect square, you know this, then the number of factors will always be odd. Now let us take an example. Let me ask you, what are the number of factors of 900? 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है पायल, गुड। कितना बनेगा आगे? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नाउ आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन। जिनको ये पता है, जिन्होंने क्लास लगा रखी है, वो इसका आंसर नहीं देंगे, जिनको नहीं पता है वो बताएंगे मेरे को, ठीक है? हाउ मेनी 2-digit numbers exist which has 3 factors only? जिसका भी आंसर आ जाएगा दे विल रेज योर हैंड। ऑनलाइन जिसका भी आंसर आ जाएगा यू गोइंग टू रेज योर हैंड। अब मैंने जो भी पढ़ाया है उसका मैं यूसेज पूछ रहा हूं, इट्स अ एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन। हाउ मेनी 2-digit numbers exist which has 3 factors only? 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनके 3 फैक्टर्स होंगे? ये क्वेश्चन अपना। कैसे सोचना शुरू करोगे अब? एक वो खुद हो गया, फैक्टर अपना एक वन हो गया। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, जैसे 11 है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर तो वो स्ट्रेट होगा, एक प्लेन होगा, तो ये नहीं होगा इसमें। हां, तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर या किसी का भी स्क्वायर, या किसी का भी स्क्वायर। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 100 तक? पढ़ाई था पिछली क्लास में, तो इसका आंसर कितना होगा? जो कि गलत है। सोच, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं? पहला कैसे सब पकड़ोगे सवाल? पहली बात तो ये कि हमें 3 फैक्टर्स चाहिए, यानी वो नंबर कैसा होना चाहिए? नहीं पायल, ये सही नहीं है। नंबर कैसा होना चाहिए?
परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कितने फैक्टर्स हैं? 3, मतलब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो कन्फर्म, तो नंबर क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर आप 1 ले लेते हो तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन क्या ये 2 डिजिट का नंबर है? आप 2 का परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हो, बट क्या ये 2 डिजिट नंबर है? तो सबसे पहला क्या लोगे? 4। अगर 4 का स्क्वायर ले लोगे 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? ठीक है संजना, कुछ तो ठीक है। ओके, हाँ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, गुड गुड। हाँ, अब 16 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 4 + 1 5। तो ये भी तो नहीं बनेगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 का तो नहीं बन रहा, 5 का देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर। तो क्या जल्दबाजी कर रही है? सुन यहाँ ध्यान से, 4 का स्क्वायर यानी 16। अब मान लो 16 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या था? उसको फैक्टराइज करना। तो 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4, और तो कुछ है ही नहीं। तो p + 1 4 + 1, वही 5 फैक्टर हैं इसके। ये नहीं कि फॉर्मूला लिखा दे p + 1 क्यूब, तो बाकी तो कुछ है ही नहीं, क्यू आर तो है ही नहीं, तो p + 1 हो गया, खत्म बात। सोच इतना आसान कैसे हो सकता है? नू कुकर ऐसा, +1 ही तो करना है अपन ने, कर दिया, काम खत्म हो गया। 5, अब कौन से 5 अगर करके देखना है, फीलिंग लेनी है तो ले, 1 2 4 5 6 7 8 16, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर हो गए, 5 आंसर। अच्छा 3 चाहिए अपने को, हाँ ठीक। 25 में हो जाएगा। कौन कौन से हैं? इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 + 1 हो गया। एक तो आंसर यही हो गया। 6 का स्क्वायर होएगा 36, क्योंकि 6 का 36 को कैन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 + 1 × 2 + 1, 9 फैक्टर हो गए, लेकिन अपने को चाहिए 3, तो ये भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर होएगा, क्योंकि ये 2 + 1 बन जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर बनेगा। 8 का बनेगा 64, क्योंकि 8 क्या होता है? 2 क्यूब 2 की पावर 6, फैक्टर कितने बनेंगे? 6 + 1 7। 9 का स्क्वायर 81, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी 4 + 1 5। क्या 10 का स्क्वायर ले सकते हैं आप? अपने को तो 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो क्यों 23 में जा रही है? मैं ये कह रहा था तेरे को। तो क्या आंसर हुआ? 5 और 7 की क्या खासियत है? प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 25 और 7 49 इज स्क्वायर ऑफ, जो इसने शुरू में बोला था। बट ये तो यूं ही चौथे गियर में चला रही है गाड़ी, 25 है तो 25 होंगे। अरे भाई मान ले 83 परफेक्ट स्क्वायर है, 83 प्राइम है, तो 83 का स्क्वायर 2 डिजिट थोड़ी ना नंबर होगा। इसका मतलब है नॉट, ये तो 2 डिजिट का है, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा ना तो 3 ही फैक्टर होंगे। मान लो ये, मान लेते हैं 111, मान लेते हैं 11 है हमारे पास, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 101, 121 होता है ना, यानी प्राइम का स्क्वायर है, 3 ही फैक्टर बनेंगे, 1 11 और 121। बस क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 121 नंबर है, सो वी 11 का स्क्वायर, सो नंबर ऑफ फैक्टर इज 2 + 1, और वो कौन सा बनेगा? 1 11 and 121। सो एनी प्राइम नंबर दैट यू हैव, अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं, इट विल नेसेसरली गिव मी 3 फैक्टर्स ओनली। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इट्स एन एग्जाम क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब हम आते हैं अगले पोटेंशियल क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 2 ही था ना फिर? हाँ बेटा आंसर 2 था, तो लिखा था क्या? रुक जा देखूं। आपने कहा गलत है। तेरे की ना माय मिस्टेक। ये 2549 लिखा था किसी ने। अच्छा गरिमा ने 6 परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, 25 3 महक ने 3 दिया था। अच्छा हाँ तुमने दिया था 27 के बाद 2, ठीक है। द आंसर इज 2, एब्सोल्युटली राइट, गुड, द आंसर इज परफेक्टली राइट 2। ठीक है, इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ना हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट, 2 डिजिट नंबर एग्जिस्ट हुज you have 3 factors, so the answer will be 2, right? ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं, समझने वाला नोट कर ले, मैं इसकी वो बना के भेज दूंगा पीडीएफ। क्यों नहीं देता हूँ, क्यों नहीं देता क्वेश्चन? हाँ आ जाती है, जनरली आ जाती है, बट चलो। क्या बेटा? पीसी, पंकज चौधरी का शॉर्टकट। प्रियंका चोपड़ा नहीं भाई, समझ लें, वो फेमस है। आज का जन्मदिन है। ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। मैंने कर दिया चेंज, वो जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी करने की। अच्छा, नाउ so this was number of factors, right? So one of the question is number of factors, और उसके ऊपर जो potential question था वो हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद ये आता है, in how many ways we can resolve a number into two factors? Break. हाँ, in how many ways can I break a number into two factors? What does it mean? For example, 8 है, I can resolve it as 1 into 8. I can resolve it as 2 into 4. Is there any? उसके बाद वो रिवर्स हो जाएगा, ये different possible resolution. So 8 I can resolve into two ways such that they are two numbers, product of two numbers. ऐसे ही मान लो हमारा क्वेश्चन आ गया 90 को हमें रिजॉल्व करना है into two factors. तो कितने तरीके से होगा? फैक्टर का आधा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 हैं, तो दो टुकड़ों में अगर फैक्टर को तोड़ना है तो आधे तरीके से होगा, जैसे कि 1 into 90 एक जोड़ा, 2 into 45 सेकेंड जोड़ा, 3 into 30 थर्ड जोड़ा, 5 into 18 फोर्थ, 6 into 15 and 9 into 10। यानी जितने भी फैक्टर्स हैं अगर मैं उनका आधा कर दूं तो पहले वाला लास्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड वाला थर्ड लास्ट के साथ पेयरिंग करेगा और उसका प्रोडक्ट ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। तो अगर मुझे दो फैक्टर्स में तोड़ना है तो उसका आंसर हो जाएगा हाफ इंटू नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सो ऑन, जो भी बनेगा। ये समझ में आ रहा है? तो हमें किस में करना है? रिजॉल्विंग इनटू टू फैक्टर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यानी जितने नंबर ऑफ फैक्टर आधा करना है। समस्या कहां आएगी ये बताओ? समस्या आएगी परफेक्ट स्क्वायर में, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए? ऑड। क्यों ऑड होते हैं वो एक बार समझ लेते हैं, फिर समझ में आएगा उस समस्या का समाधान क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 36 फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर है। इसके फैक्टर देखते हैं 1 2 3 4 6, फिर 7 8 9 12 18 36। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फैक्टर हो गए। 1 into 36 36 बनेगा, 2 into 18 36 बनेगा, 3 into 12 36 बनेगा, 4 into 9 36। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 6 into 6 भी बनेगा, लेकिन 6 into 6 को आप दो बार तो काउंट नहीं कर सकते। नाउ इफ यू वांट टू रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स, या तो हम इस 6 को छोड़ दें और या तो ले लें। अगर हमने छोड़ दिया तो ये बनेगा p+1 q+1 r+1 -1। कैसे? हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 13 -1, यही बनेगा। तो आंसर आ जाएगा 6 पेयर। लेकिन ये 6 पेयर कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट, जहां पे 6 into 6 इज नॉट इंक्लूडेड। 6 into 6 इज, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो दो हिस्सों में तो टूटेगा, 6 गुना 6। मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 121 होता तो 11 into 11 भी तो आएगा ना। अगर हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, सेम नंबर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? माइनस। लेकिन अगर हमें वो एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल है? सेम नंबर इंटू सेम नंबर एज अ पेयर। अगर मेरा पास एक्सेप्टेबिलिटी है तो मैं क्या करूंगा? उसको +1 कर दूंगा। ये ध्यान रखना है। तो किताब में आपको +-1 लिखा होगा। +1 का मतलब है वी आर कंसिडरिंग द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ एज अ पेयर।
-1 का मतलब है वी आर नॉट कंसिडरिंग द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो उसने डिस्टिंक्ट पेयर्स बोल दिए तो नहीं लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन की सेंस ये बन रही, क्वेश्चन की ये सेंस बन रही है कि लेना है तो हमें +1 करना पड़ेगा। क्या बताना है? मैं ये कह रहा हूं मान ले अपने 13 फैक्टर हो गए, कैसे आए? 3 4 5 6 7 8 9 है, मान लो 13 नहीं है, इसके 9 पकड़ लेते हैं, तो ये समझ। इसके कितने फैक्टर बनेंगे? 9। अब 9 को आधा तो नहीं कर सकते, 4.5, एक बार माइनस ले ले, माइनस का मतलब 8, 8/2 4, 4 जोड़े बन रहे हैं। कौन से? 1 × 30। ये 4 जोड़े कौन से हैं देख ले पहले। ये 4 जोड़े हैं 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12 एंड 4 × 9। ये 4 जोड़े हैं। लेकिन अगर अपन इसमें 9 + 1 कर लेते हैं तो कितने जोड़े आएंगे? 5। 5 में ये तो आएगा ही आएगा, प्लस 6 × 6 आ जाएगा। बस मैं ये समझा रहा हूं। अगर हमें 6 × 6 वाला भी चाहिए तो फॉर्मूले में +1 कर देंगे, नहीं चाहिए तो -1 कर देंगे, बस है। All the possibilities. वही से समझते हैं कैसे आएगा? 3 बोल कह रहा था हाँ, ऐसे डिस्टिंक्ट पेयर्स। हाँ, पॉज कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऑल पेयर्स कह सकता है, या तो ऑल पेयर्स कर देगा और मान लो हमें समझ नहीं आ रहा तो जो ऑप्शन होगा उसमें 1 का डिफरेंस मिलेगा, 1 से ज्यादा का डिफरेंस मिलेगा तो वहां से पकड़ में आएगा सवाल की ये पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, और कोई इलाज नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसके लिए कोई एक्सक्लूसिव लैंग्वेज वो यूज करेगा या नहीं करेगा वो हमें पता नहीं है वो क्या करेगा, ठीक है। बट हाँ बेटा, नहीं हो, वो तो डिपेंड करे वो पूछ क्या रहा है, दोनों ही होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये बात समझ में आती है? रिजॉल्विंग इनटू 2 फैक्टर्स का तरीका, हाफ +1 -1, इसका लॉजिक समझ में आता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, मान लो 90 है, n है, और n जो मेरा 90 है। इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या था? 15 18। अब बोल रहे हैं इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट बता दीजिए। किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए हमें। अच्छा, इसमें एक चीज तुम भूल गया। ओके, अभी ना ऊपर वाले में एक चीज रह गया है, बताऊंगा, पहले इसको छेड़ दिया तो इसको कर ले। अब एक बात समझ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 90। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? जितने भी पेयर हैं, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला बनेगा, प्रोडक्ट n की पावर d/2। व्हाट इज d? d इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? जैसे 90 था, 90 की पावर 12 फैक्टर बटे 2, 5 डी डी डी, तो n 90 की पावर 6, ये मेरा 6 जोड़े आ गए। कहीं प्रॉब्लम आ सकती है इसमें? परफेक्ट स्क्वायर वाला। लेट अस लुक एट 36। 1 2 3 4 5 6, क्या 7 8 9, फिर 12, फिर 18, यही बनेगा। लेट अस मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू सी? लेट्स मल्टीप्लाई दिस 136, another 36, another 36, this is another 36, और मेरे पास क्या बच गया? 6। यही चाहिए एक्चुअली।
तो बेसिकली बचा 36 की पावर 4 इंटू 6। अगर मैं इसको समझाऊं एक तरह से 36 की पावर 4 इंटू 36 की पावर हाफ कर दूं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कैन आई से इट इज 36 की पावर 4.5। अब मेथड लगाते हैं, फॉर्मूला 36 की पावर, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5। यानी कोई चक्कर नहीं है, किसी चीज का आंसर आएगा, कुछ भी कर लो। परफेक्ट स्क्वायर हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4.5 का मतलब क्या है? 36 की पावर 4 इंटू 36 का अंडर रूट, वो सिंगल टाइम ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं समझ में आया? देखो, जिसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, मामला खत्म हो गया। प्रॉब्लम आएगी जिसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो 9 फैक्टर्स हैं, तो मेरा आंसर आना चाहिए 36 की पावर 9/2। वो वही आंसर है, उसमें कोई गलती नहीं होगी, बस यही आंसर है। हाँ, जैसे उसमें हम एक्सेप्शन ले रहे थे ना, ऑड है इवन है तो प्लस माइनस करना, इसमें कुछ कोई चक्कर नहीं है, आंसर सही आएगा आपका। ठीक है, हाँ जी बच्चे ऑनलाइन समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? यस तो समझ आ गया। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजॉल्विंग अ नंबर इनटू 2 फैक्टर्स सच दैट दे आर को प्राइम टू ईच अदर। ये अगला सवाल है। नंबर ऑफ ways of resolving a number into 2 factors such that they are co-prime to each other। co-prime समझते हो? co-prime का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 8 1 2 4 और 9 ले लेते हैं 1। क्या कुछ कॉमन है 1 के अलावा? हाँ, इसमें HCF क्या है? 1। जिन दो नंबरों का HCF 1 होगा ना, उनको कोप्राइम बोलते हैं। जिन दो नंबरों का HCF 1 होगा, मतलब सिर्फ 1 होता है, किसी भी दो नंबर का HCF सिर्फ 1 हो, वो कोप्राइम होते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया वापस वो 90 को, अगर मान लो अपने को रिजॉल्व करना है, तो एक नंबर था 1 इंटू 90, दूसरा पेयर था 2 इंटू 45, तीसरा था 3 इंटू 30, फिर था मेरा 5 इंटू 18 और फिर था मेरा 9 इंटू 10। हाँ 6 इंटू, हाँ 2 फैक्टर्स सच दैट दे आर को प्राइम टू ईच अदर। अब ये 6 जोड़े आ गए पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन इन 6 जोड़ों में से हमें सिर्फ वो जोड़े चाहिए जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यानी जो आपस में को प्राइम। क्या 1 इंटू 90 चलेगा? क्यों? कॉमन है, बता क्या फैक्टर है? 1 और 90 में क्या कॉमन है बता? 1 तो चलेगा ना, ये चलेगा, ये बिल्कुल ठीक। ये चलेगा क्या? ये क्यों? क्या ये चलेगा? ये चलेगा क्यों? क्या ये चलेगा? 9 और 10 कोई कॉपी कॉमन नहीं है ना 9 और 10 में, तो ये चलेगा, को प्राइम है ना आपस में। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ना को प्राइम होता है हमेशा, याद रखना है। तो कितने आ गया मेरा आंसर? क्या आना चाहिए? 4।
अब प्रॉब्लम ये है कि यहां तो हमने बना के देख लिया, लेकिन कोई 900 हो गया मान लो, और फिर बोले कि भैया ऐसे फैक्टर बताओ जो आपस में को प्राइम है, तो मामला फंसेगा। अब कैसे करें इसको? ये फॉर्मूला समझाने का है, फॉर्मूला बताने से काम चलेगा नहीं। नंबर ऑफ पेयर्स तो हम आधा कर रहे थे, और फिर p+1 q+1 ऐसे कर रहे थे। जो 90 है मान लो मेरा, वो है 2⁻⁴ 3 स्क्वायर। अब आप एक बात समझो, ये जो q था वो 2 था। अगर मुझे किसी नंबर को 2 टुकड़े में काटना है, मान लो मेरे पास एक चक्कू है, मैंने एक चक्कू यहां मार दिया, तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, हो गए 2 टुकड़े। क्या उसमें कुछ कॉमन मिलेगा आपको? क्योंकि 2 इधर हो गया और 9 पंजे 45 वहां हो गया, कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा, मान लो मैंने वो चक्कू यहां मारा, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। मान लो चूंकि कुछ लिखा नहीं है, मैंने चक्कू यहां मार दिया, क्योंकि 1 तो है ही, कुछ नहीं लिखने का मतलब होता है 1 तो होना ही है, तो भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, कैसा करता हूं, ये जो पावर है इसको स्प्लिट कर दूं, कैसे? 2 × 3 × 3। अब चक्कू मारता हूं, यहां मारूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां मारूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां बाहर मारूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आएगी? जब मैं चक्कू यहां मारूंगा। इसका मतलब अगर मैं पावर को स्प्लिट करूंगा, एक बार के लिए, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते एक नंबर है जिसमें मेरा 2⁻2 था, 3⁻3 और 5⁻1 है, मान लेते हैं। इसका मतलब है 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। अगर मैं इधर एक चक्कू मारूं, यानी सारे 2 एक तरफ रहे और सारे 3 और पंजे एक तरफ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने चक्कू इसके बीच में मार दिया, पावर के बीच में मार दिया, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1 2 यहां गया, 1 2 यहां गया, कॉमन HCF आ जाएगा, कॉमन फैक्टर। ऐसे ही अगर मैंने चक्कू यहां कहीं मार दिया, या तो यहां मार दिया या यहां मार दिया, तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 3 जो है उसको मैंने स्प्लिट किया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी नंबर की जो पावर है, मान लो इन तीनों को मैं हमेशा इकट्ठा रखूं और इन दोनों को हमेशा इकट्ठा रखूं, तो कभी भी को प्राइम में दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि ये कई बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी 3 स्क्वायर है, इसका कोई फायदा नहीं है, चाहे 3⁻1 होता, 3⁻2 होता, 3⁻5 होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस सारे सिस्टम को मुझे हमेशा एक ही जगह रखना है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये जो PQR है, ये जो पावर है, इसकी वैल्यू मेरे लिए नहीं है, इस सबको मुझे 1 1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 1 1। तो ये बन जाएगा 1/2 × 2 × 2 × 2 बन जाएगा। PQR का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? PQR क्या था? पावर। पावर को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको सिंगल एंटिटी मानना पड़ेगा। उसको क्या मानना पड़ेगा? सिंगल एंटिटी। तो 2 × 2 × 2 आएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? ये 4 आंसर है। किताब में आपको फॉर्मूला मिलेगा, किताब में आपको फॉर्मूला मिलेगा 2⁻n−1। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, फैक्टर नहीं, प्राइम्स। यानी जो नीचे वाला ना 1 2 3, समझ में आ रहा है? 1 2 3, तो ये बनेगा 2⁻3−1। ये 2⁻n−1 लिखवा देता है तो समझ नहीं आता, मैं समझाने के लिए सारी कहानी बना रहा हूं। ये कहानी नहीं है, मतलब असली बात यही है कि अगर किसी नंबर की ज्यादा पावर है और अगर मैं उसको स्प्लिट कर दिया, पावर, हाईएस्ट पावर को मैंने कुछ पावर इधर डाल दी, कुछ पावर इधर डाल दी, तो को प्राइम तो बचेगा नहीं। तो यानी चाहे कितनी पावर 100 भी होती, वो 100 की पावर को एक ही ट्रीट करूंगा, एक ही एंटिटी माननी पड़ेगी, इसलिए PQR को 1 मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्योंकि जहां 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर या तो 2 के साथ आएगा या 5 के साथ आएगा, या जहां भी जाएगा 3 स्क्वायर इकट्ठे जाएगा। 3 स्क्वायर जाएगा, 3 नहीं जाएगा। एक यूनिट मान लेते हैं, 3⁵ होता, स्प्लिट करने को तो 3 1 3 इधर कर दो, 4 तिक्की इधर कर दो, हो सकता था।
स्प्लिट तो हो जाएगा लेकिन वो कोप्राइम नहीं होगा क्योंकि 1 3 यहाँ है 4 3 यहाँ है। उसी तरह 3 स्क्वायर भी कर सकते थे बट वो कोप्राइम नहीं होगा। 3 क्यूब 3 भी कर सकते थे, इसलिए 3 की पावर 4 एक ही जगह रहेगा, चाहे इधर ले जाओ चाहे कहीं ले जाओ, सिंगल एंटिटी है वो, उसको उसकी स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको 1 मानते हैं हम। तो किताब में फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजॉल्विंग अ नंबर सच दैट दे आर इनटू को-प्राइम टू ईच अदर इज 2 की पावर n-1। व्हाट इज n? नंबर ऑफ बेसिक, जो नीचे वाले प्राइम है ना जिसकी पावर आप लिख रहे हैं वो नंबर्स हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक रैंडम नंबर है, उसमें है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 7 की पावर 11 एंड लेट्स से 83 की पावर 7। ठीक है, बोले इस नंबर को रिजॉल्व करना है 2 फैक्टर्स में सच दैट दे आर को-प्राइम टू ईच अदर। क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 1 2 3 4, ऊपर वाले से कोई मतलब है अपने को, क्योंकि जहां पर भी 3 की पावर 5 जाएगा इकट्ठा ही जाएगा। तो 3 की पावर 4 -1, अगर अपन इसके सारे फैक्टर्स बनाएं और फिर रिजॉल्व करें फिर को-प्राइम देखें तो सिर्फ 8 बनेंगे, वो ये इसका एक्सप्लेनेशन है डिटेल। ठीक है, number of ways of resolving a number into 2 factors such that they are co-prime to each other is this method. क्या बेटा? n ये कहाँ बेटा? अच्छा ये वाला काट दिया जो मैंने, ये मैंने 2 लिखा था, ये 2 और ये 2 कट गया था। ठीक है, ये इसका मेथड है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका लॉजिक ये है। ये लॉजिक समझ में आएगा तो क्वेश्चन, कई बार टफ क्वेश्चन भी बनते हैं वो निकल जाएंगे। टफ क्वेश्चन मान लो मैंने कहा जमा ही मुश्किल क्वेश्चन बनाना है मेरे को, 2 की पावर 3 की पावर 8 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 की पावर 8 इंटू 83 की पावर 734 इंटू 91 प्राइम होता है क्या? नहीं, चल मान ले इतना ही बहुत है। और बोला कि नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजॉल्विंग इनटू 2 फैक्टर्स सच दैट दे आर को-प्राइम टू ईच अदर। देख के कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व थोड़ी ना होएगा, बट करना कुछ नहीं है। करना क्या है? 2 की पावर, समझ में आ रही बात? और मान लो और मुश्किल करना है तो मैं बोला इसका स्क्वायर था जी, इसका क्यूब था, अब कर लो, क्या ही फर्क पड़ना है अपने इधर थोड़ी ना। इसकी होल क्यूब कर दिया, मान लो क्वेश्चन मैंने दे दिया, फिर क्या होएगा? कुछ नहीं होगा। होगा क्या? नीचे वाले थोड़ी ना बदल जाएंगे, पावर ही तो बढ़ेगी, बढ़ने तो हमें क्या दर्द है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, एक कैट में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन में, बहुत कॉम्प्लेक्स था, फैक्टोरियल डाल के पता नहीं क्या क्या ही कर रखा था, बट क्या फर्क पड़ रहा है? बस कुछ नहीं था, नीचे गिनने थे, 4 दिख रहे थे, वही जोड़ने थे कि भाई 4 है ना, उसकी पावर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी। तो अगर ये लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं तो आप उसको कर पाओगे। इसका आंसर 4 ही होगा, क्यूब का कोई लेना देना नहीं। क्यूब का क्या, वो क्यूब तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा इसमें, ये इसमें पावर कितनी भी बढ़ जाए हमें कोई फर्क। अच्छा ये ना मान ले 2 ना होता और मैं यहाँ पे कर लूं मान ले 7 की पावर 843, तो भी फॉर्मूला है 2 की पावर 1 2 3 है ना, 3 - 1। इस बात से कोई लेना, लकीली 2 जनरली आ जाता है इसलिए आप लिखते हैं, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। यहां तक बात समझ में आती है? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजॉल्विंग अ नंबर इनटू फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, number of ways of resolving into factors, number of ways of resolving into 2 factors such that they are co-prime to each other, the number of ways of resolving the numbers and finding out its product. अब ये भी किया ना, n into d की पावर n की पावर d/2। इसके बाद आता है इन फैक्टर्स का सम निकालना। जैसे कि हमने 90 किया था, इसके फैक्टर थे 1 क्या हेडिंग, इसका फैक्टर्स का सम निकालना है, इन फैक्टर्स का सम निकालना है। अब इन फैक्टर्स का सम निकालने का एक तरीका तो जोड़ लो,
बट ऑब्वियसली अगर 900 होगा तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. इसका एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला तो वैसे मैं बता सकता हूं, लेकिन याद कराने के लिए कहानी जो भी सुनाऊंगा समझाऊंगा वो इसलिए ताकि आपको याद रहे. ठीक है, ताकि हम फॉर्मूला कंफ्यूज ना करें और याद कर पाए. उसके पहले एक चैप्टर फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, प्रोग्रेशंस बोलते हैं उसको. हाँ, उसमें एक चीज होती है जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है. पहले हम समझते हैं ये क्या है, उसका सम कैसे निकालते हैं, फिर मैं वापस आऊंगा अपने फॉर्मूले पे समझाने के लिए कि कैसे किया गया. ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं फिर हम वापस आएंगे. तो पहले मैं इसको नीचे आपको जीपी समझाता हूं. मान लो कोई एक टर्म है ए, अगर हमने इसमें किसी चीज को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लेते हैं आर, और फिर अगले वाले में इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा, फिर अगले में कर दिया तो आर क्यूब बन जाएगा. ऐसे ही अगर हमने एन तक कर दिया तो ए आर की पावर एन, n-1 उसको जनरल टर्म बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0 है, तो nth टर्म में आर की पावर n-1. ये लॉजिक समझ में आ रहा है. यानी किसी भी एक कांस्टेंट नंबर में अगर हम कोई नंबर बारी बारी मल्टीप्लाई करते चले तो जो नई सीरीज बनती है हम उसको जीपी के नाम से जानते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं. क्या बोलते हैं इसको? जीपी. अगर हमें इस जीपी का सम निकालना है, क्या निकालना है? जीपी का सम. तो फॉर्मूला होता है a इंटू ए, यानी जो फर्स्ट टर्म होती है आर की पावर n ओवरऑल -1 डिवाइडेड बाय r -1. This is the formula for finding out the sum of geometric progression. What is n? N is the number of terms. N is the number of terms. इसको nth टर्म भी बोला जाता है. nth टर्म में r की पावर n-1 आएगा. लॉजिक क्लियर है? क्योंकि पहले टर्म में r की पावर 0 है तो अगले टर्म में r की पावर 1, यानी जो भी टर्म है उससे एक कम है r. तो जो सम टू जीपी होता है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, वो होता है a इंटू r की पावर n-1 r -1. If r is greater than 1, अगर लेस देन 1 होता है तो 1 माइनस हो जाता है, बट फिलहाल हम एक बार r is greater than 1 रखते हैं. ठीक, अगर ये फर्स्ट वाली वैल्यू 1 हो जाती तो यहां पे भी 1 आ जाता. मान लो एक टर्म होता 1 इंटू r, या 1 ही होता सिर्फ, मान लेते हैं, प्लस r स्क्वायर सो ऑन, ऐसे होता. इसका फॉर्मूला ये आ जाता 1 r की पावर n-1 बाय r -1. समझ में आ रहा है? यानी जो भी यहां होगा कांस्टेंट वो यहां आ जाएगा. इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? नो प्रॉब्लम्स. ओके. अब मान लेते हैं मेरे पास कोई चीज है a प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस सी, यानी मुझे इसका सम करके और इसका सम करके प्रोडक्ट करना है. यानी पहले दोनों का पहले सम करना है और फिर, अगर मैं आपको बोलूं कि यार ऐसा है, मैं पहले प्रोडक्ट करना चाहता हूं a इंटू डी प्लस a इंटू ई प्लस बी इंटू डी प्लस बी इंटू ई प्लस c इंटू डी प्लस c इंटू ई. यानी कि पहले प्रोडक्ट करके ऐड करूं या पहले ऐड करके प्रोडक्ट करूं, क्या मेरा आंसर सेम आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? यानी किसी एक्सप्रेशन को पहले जोड़ दूं और फिर उसको गुणा कर दूं, या किसी एक्सप्रेशन को पहले गुणा कर दूं और फिर उसको जोड़ दूं, आंसर में कोई फर्क आएगा? नहीं. ये मेरी सेकंड लर्निंग है. ठीक है. अब एक और लर्निंग बताता हूं आपको. ये फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल पे पीएनसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मैं किसी एक काम को 3 तरीके से कर सकता हूं और दूसरे काम को 2 तरीके से कर सकता हूं, तो ये दोनों काम कितने तरीके से कर सकता हूं? 6 तरीके से. क्या? क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है. बिकॉज वेन एवर आई हैव टू डू द फर्स्ट एक्टिविटी and the second activity, the number of ways I can do this is 6. It is like saying मेरे पास 3 शर्ट्स हैं और 2 टाइज हैं, मैं शर्ट और टाई कितने तरीके से पहन सकता हूं? 6. ये लॉजिक क्लियर है या 5 है इसका आंसर? ये क्लियर है ना? ये तीनों चीजें समझ में आती है. अब पहले ये समझाऊंगा कि ये जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले किया था P+1 Q+1 और R+1,
ये +1 क्या है ये समझ में आना चाहिए, और हमने मल्टीप्लाई क्यों किया ये समझ में आना चाहिए, है ना। मैंने बोल दिया था ना कि भाई एक बार मान लेते हैं ये फॉर्मूला है, ये समझते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, तब हमें समझ में आएगा कि इसका सम कैसे निकालना है। अब आप एक बात समझिए, जैसे मेरे पास नंबर था 90, ठीक, 90 के फैक्टर, फैक्टर का मतलब टुकड़े, 90 कैसे बना था, एक ये था, ये था और ये था, इन्हीं के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से 90 बना था। क्या मतलब है इस बात का, 90 मान लो एक तरह का डिश है, इस डिश को बनाने के लिए हमें 2 भी चाहिए, टिक्की 2 बार चाहिए और पंजी 1 बार चाहिए, तभी ये डिश प्रॉपर तैयार होगी। इस डिश के कंपोनेंट्स क्या है, दुक्की, कंपोनेंट्स क्या है, दुक्की, इस कंपोनेंट को हम फैक्टर बोलते हैं। टिक्की, नौकी, 9 भी ये फैक्टर है, 9, पंजी अगर 2 और 10 को ले लें वो भी एक टुकड़ा, एक फैक्टर बनेगा, यानी इसी के पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन ही सारे मेरे फैक्टर हैं। इसका मतलब है कि या तो मैं 2 को ना लूं, ना लेना मतलब 2 की पावर 0, और या तो मैं 2 को एक बार ले लूं। 3 इंग्रेडिएंट्स है मेरे, दुक्की, तिक्की और पंजी, या तो दुक्की ना लूं और या दुक्की एक बार ले लूं। तिक्की या तो ना लूं, या तो तिक्की एक उठा लूं या 2 तिक्कियां उठा लूं, नहीं। पंजी या तो ना लूं या एक बार ले लूं, यही टुकड़े हैं। अब देखो ये 3 हिस्से हैं, इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर मैं इसमें से ये ले लेता हूं, इसमें से ये और इसमें से ये, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 बनेगा। इसमें से मैंने ये ले लिया, इसमें से मैंने ये ले लिया और इसमें से ये ले लिया, क्या बनेगा टुकड़ा, 1 इंटू 1 इंटू 5, ये भी एक टुकड़ा है। इसमें से मैंने 1 ले लिया, इसमें से मैंने 1 ले लिया, अच्छा इस तो, अच्छा इसमें से 1 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया और इसमें से 1 ले लिया, तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। इसमें से 1 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 5 ले लिया, क्या बनेगा 15, 1 इंटू 3 इंटू 5, टुकड़े चाहिए ना हमें, इसमें से एक चाहिए, इसमें से एक चाहिए, इसमें से, उसका प्रोडक्ट करना है अपने को 15। इसमें से 1 ले लिया, इसमें से 9 ले लिया और इसमें से 1 ले लिया, क्या बनेगा 9। इसमें से 1 ले लिया, इसमें से 9 ले लिया, इसमें से 5 ले लिया, क्या बनेगा। कहना ही से ये जब सारे पॉसिबिलिटीज ले लोगे तो ये सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। इसका मतलब फैक्टर क्या है, फैक्टर ये एक चीज यहां से उठानी है, एक चीज यहां से उठानी और एक चीज, इस चीज को कितने तरीके से उठाया जा सकता है, दुक्की को 2 तरीके से, या तो नहीं उठाएंगे, इसको कितने तरीके से उठाए, या तो नहीं उठाएंगे या 3 की 1 3 उठाएंगे, या, और ये कितने तरीके से कर सकते हैं, तीनों काम करने, एक ही काम करना है, इसलिए प्रोडक्ट हो रहा है। तो जो P+1 था, +1 था ये ना उठाने वाली पॉसिबिलिटी, इंटू Q+1 था, Q यानी 2 मतलब या तो 3 की पावर 1 उठाएंगे या 3 की पावर 2 उठाएंगे, +1 का मतलब या तो नहीं उठाएंगे, और इसमें क्या था, या तो या उठाएंगे, ये 2 पॉसिबिलिटी। इसीलिए P+1 Q+1 R+1 का मतलब पावर 0 यानी नहीं उठाने वाली चॉइस। अगर 3 की पावर 4 होता तो या तो 3 की 0 उठाते यानी नहीं उठाते 1, या 3 की पावर 1 उठाते, या 3 की पावर 2 उठाते, या 3 की पावर 3 उठाते, या 3 की पावर 4 उठाते। कितने तरीके से उठा सकते थे, 5 तरीके से, उसको हम 4+1 बोलते हैं। और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को सारे काम करने हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, FPC। एक काम, जैसे मैंने कहा 3 शर्ट और 2 टाइज हैं, कितने तरीके से पहन सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। तो इन पहले वाले सेट में से मुझे एक उठाना है, एंड दूसरे वाले में से भी उठाना है, एंड तीसरे वाले में से भी उठाना है, और फिर इसलिए उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये इसका रीजन है जो हमने फॉर्मूला ओरिजिनली निकाला था। ये बात समझ में आती है ना। अब हम आते हैं इस अंडरस्टैंडिंग में इसका सम कैसे निकालेंगे। ओके, अब एक बात सुनो, ये 90 के जो फैक्टर्स आपने बनाए, ये जो मेरे फैक्टर्स हैं,
ये फैक्टर्स कैसे बने होंगे, इन्हीं में से इनका प्रोडक्ट कर करके, विच इज टेक्निकली स्पीकिंग कैन आई राइट 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1 इंटू 1 इंटू 1, पहला फैक्टर बनेगा, समझ में आ रहा है। 1 इंटू 1 इंटू 5 ये वाला बनेगा, ठीक है। 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 क्या बनेगा 3। मतलब 3 चीजों का प्रोडक्ट करना है, इनका प्रोडक्ट करूंगा तो ये बनेगा और फाइनली सम करना है, समझ में आ रहा है। यानी इनका सम निकालने का मतलब है कि इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट प्लस एडिशन, समझ में आ रहा है। ये जो कर रहे हैं क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और फिर उसका सम निकालेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब मैं कहता हूं कि पहले इनका सम निकाल लेते हैं इंडिपेंडेंटली और फिर प्रोडक्ट कर दें तो भी काम चल जाएगा, जो मैंने पहले सिखाया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये लिखने के लिए मुझे इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, उसको नहीं करते, पहले इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, हाँ सिंपल, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आसान पड़ेगा। मैं जोड़ने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एपी सीरीज जीपी सीरीज है, ये सारी, ध्यान से देखो, ये सारी सीरीज जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, टू गिव एनीथिंग पावर 0। अब मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, आर कॉमन रेशियो क्या है 2, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करो, तो इसका कॉमन रेशियो 2। 2 की पावर कितनी टर्म्स हैं 2, -1 डिवाइडेड बाय 2 -1, ये बनेगा 3 की पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1, और ये बनेगा 5 की पावर 2 माइनस, ठीक है। अब ये जो 2 आया पता है कैसे आया, p+1 करके आया, ये 2 कैसे आया p+1, और a क्या है कॉमन रेशियो, a क्या है, अगर मान लो मेरा नंबर है a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, यही है, तो नीचे वाला तो बनेगा a, ऊपर कितनी बनेगी p थी ना, p+1 करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए है ना, जीपी का फॉर्मूला यही था, -1 डिवाइडेड बाय a माइनस, ये आएगा। अगला क्या था b की पावर q+1 -1 b -1, अगला टर्म क्या आएगा c की पावर r+1 -1 c -1, और ऐसे चलता जाएगा। ये है सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला। आपको ये याद रहे ये क्या लिखा है, इसलिए सारी कहानी है, हालांकि सब जगह काम में आएगी, ऐसा फालतू टाइम मत समझना ये वेस्ट है। जब हम जीपी पढ़ेंगे तो आज वाली क्लास शायद रिवाइज हो जाए, जब हम फंडामेंट एफपीसी पढ़ेंगे तो आज वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाए। ये एक्सप्लेनेशन है, प्रोडक्ट करके सम निकालने की बजाय आप सम करके प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जीपी बनता है और जीपी का सम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, याद हो जाएगा, इसलिए आंसर है। हाँ बेटा, अच्छा ये ए वो ए नहीं है, ये जनरल है, इस ए को उसका का कोई कनेक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग। हाँ जीपी में, ये तो देख जीपी है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो फॉर्मूला बताने के लिए मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला होता है, देखो यही तो लगा है, यही फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला, ये ए, ये इसकी वैल्यू यहां रखनी चाहिए हमें इसके आगे, लेकिन रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली टर्म हमेशा एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 ही होगी, इसलिए एक्चुअली यहां 1 है। हाँ लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 होगा, यानी जो फर्स्ट टर्म है एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 भी 1 ही होता है। इस ये 1 इज डिफरेंट फ्रॉम जो +1 कर रहे हैं हम, ठीक है। आप उस 1 उसको यहां समझो कि ये जो 1 है ना, एक्चुअली यहां पर 1 होना चाहिए, जो a है, ये जो a है ना, ये वो एक्चुअली ये फर्स्ट टर्म होती है, 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1, बस मैंने लिखा नहीं क्योंकि 1 × 1 × 1 होता है, इसलिए ये एक्चुअली। बताइए यहां तक समझ में आ रही है बात। तो हमने क्या किया, एक नंबर लिया, उसके हमने फैक्टर्स बनाए, हमने उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले, उस नंबर ऑफ फैक्टर्स को फिर हमने उसका सम निकाला, हमने उसका प्रोडक्ट निकाला, हमने उसको किसी भी नंबर को 2 फैक्टर्स में रिजॉल्व किया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे पेयर निकाले,
फिर हमने ये देखा उन पेयर्स में ऐसे कितने पेयर हैं जो कोप्राइम है। यहां तक बात पल्ले पड़ रही है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना? अभी 10 मिनट है, अभी तो 2 कंसेप्ट हो जाएंगे और एक ही तो घंटा पढ़ाया है मैंने। 1 घंटा तो सर थे। हैं जी? ना ना समझा दूंगा, चिंता ना कर। हैं अभी तो छपी है मेरे पास, पढ़ी तो है एक। वो सोच रहा है मेरी बिक जाए, मेरे अमेज़न पे रेटिंग आ जाए, तुम सोच रहे हो। हाँ ठीक है, चलो अभी रख देता हूँ, कोई नहीं। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर लेस देन 90 एंड को प्राइम विद 90। मतलब मान लो एक नंबर है 90, हमें वो सारे नंबर्स चाहिए जो 90 से कम है बट 90 के साथ वो को प्राइम बना रहे हैं। यानी 90 एंड दैट नंबर हैज टू बी को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे कितने नंबर है? इसका पर्पस सिर्फ ये है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगी तो दिमाग इरिटेट होएगा। ये वो इरिटेशन अभी क्रिएट कर रहा है ताकि जब रियल लाइफ प्रॉब्लम आए तो जब दिमाग इरिटेट हो तो आप उसको हैंडल कर सको, इसलिए कराया जाता है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर लेस देन 90 एंड को प्राइम विद 90? इसको एक तो वेन डायग्राम से सोच सकते हो आप, बट दैट विल बिकम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। मतलब इसमें 2 के मल्टीपल नहीं चाहिए, 3 के मल्टीपल नहीं चाहिए, 5 के मल्टीपल नहीं चाहिए, लेकिन जब 3 के मल्टीपल माइनस करेंगे और 2 के करेंगे तो 6 के माइनस हो चुके होंगे, ओवरलैपिंग निकालना पड़ेगा। ऐसे ही 3 और 5 15 के निकालने पड़ेंगे, और 5 और कौन सा 2 और 5 10 के निकालने पड़ेंगे, लेकिन फिर वो थर्ड ओवरलैप हो जाएगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल है। ओके, लेट मी हेल्प यू दिस विद दिस। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, यही बनेगा। इसका मतलब इसमें दुखियां तिक्कियां और पंजियां नहीं चाहिए अपने को। मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, फिर फॉर्मूला बता दूंगा आपको, बट वो क्यों आ रहा है, क्यों वैलिड है, ये समझाने का कारण है। मान लेते हैं मैंने 90 तक नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लिखा मैंने 11 12 13 सो ऑन टिल 20। ऐसे ये आ जाएगा 21 31 41 51 61 71 81 91। अच्छा 90 तक ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं 82 83 सो ऑन टिल 90, यही बात है। ओके, हमें चाहिए 90 के साथ को प्राइम होना चाहिए। 90 में दुखी है, यानी किसी भी नंबर में जिसमें दुखी है वो नहीं चाहिए। इसका मतलब है हर दूसरे नंबर में दुखी है। समझ में आ रही बात? हर दूसरे, समझ में क्या? ये समझ में आ रहा है? यानी 90 में से आधे नंबर हटा दिए, कितने बच गए? आधे बच गए। अब कहना इसे हर तीसरा नंबर भी नहीं चाहिए। वेरी गुड। अब तीसरा नंबर जो बच गए वो तो कट जाएंगे, और कुछ नंबर पहले ही कट गए थे तो कोई बात नहीं, यही बात है। उसी तरीके से 9 कट जाएगा, फिर क्या 12 कटेगा, फिर 15 कटेगा, फिर 18 कटेगा, कटेंगे सारे। कहने से हर तीसरा नंबर कटेगा। कितने बचेंगे? इसका 2/3 बचेगा, जो उसका 1/3 निकल गया तो उसका 2/3 बचेगा। उसके बाद हर 5वां नंबर नहीं चाहिए। 5 10, ठीक है, 15 20, जो कट गए वो कट गए, ठीक है।
रिपीट होंगे या कटेंगे, यानी हर पांचवा नंबर नहीं चाहिए तो कितने बच गए, 4/5 बच गए भैया, ये आंसर है। 2 से 2 कटेगा, 3 30 में जाएगा, 5 6 में जाएगा, 24 आंसर है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है किताब में, n इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल, जो मतलब जो आंसर है वो है जो नंबर, जो बचेंगे ना 90 के साथ वो 24 नंबर्स बचेंगे। जैसे 1 बचेगा, ठीक है, फिर क्या बचे, 7 बचेगा, सारे प्राइम बचेंगे, जरूरी नहीं है 49 भी तो बचेगा, वो प्राइम नहीं है ना, 7 का स्क्वायर प्राइम नहीं है। 25 भी तो बचेगा, 25 तो नहीं, खैर 5 हट गया, प्राइम में मान लेते हैं आप 13 का स्क्वायर 17, हाँ वो तो सारे प्राइम हो गए। मैं कह रहा हूं प्राइम के अलावा जो बचेंगे, जो प्राइम के अलावा बचेंगे, तो यानी 1 - 1/a का मतलब है दो अवेलेबल है, यानी आधा नंबर, आधे वैसे ही हट गए तो आधे बचे, इसलिए 1 माइनस करना पड़ रहा है। 1/3 हट गए तो 2/3 बचे, वो कैसे मिलेगा, 1 - 1/3। 1/5 हट गए तो 4/5 बचेगा, तो 4/5 लिखने का क्या तरीका है, 1 - 1/4। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बोल तू बोल, जिसको तेरी श्रद्धा है उस पे। 79 प्राइम तो नहीं है ये, 78 ले लेते हैं। इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 × 49 बनेगा, यानी कि 7 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए सारे फैक्टर्स, तो ये दुखी नहीं चाहिए, यानी 78 में से 1 - हाफ करना पड़ेगा। आधे नंबर नहीं चाहिए तो आधे चाहिए। अब 70 नहीं चाहिए हमें, 7 नहीं चाहिए, यानी 1/7 नहीं चाहिए, यानी 1 - 1/7 चाहिए, यानी 6/7। तो मेरा आंसर बनेगा 78 into half into 6/7। तो ये 2 3 में चला जाएगा, और क्यों आएगा पॉइंट्स में, कितने में जा रहा है ये, तीनों का प्रोडक्ट जो है 14 में जा रहा है हाफ इंटू 6। सर 78 7 से डिवाइड कहाँ होता है, क्या 78 7 से डिवाइड ही नहीं होता फैक्टर, आपने तो 7 ये गलत, ये और गलत इसके किया है ना। फैक्टर्स 2 × 3 × 13 बनेंगे। हाँ ये गलत है ना, 2 × 3 × 13 नहीं, 2 × 3 × 13, हाँ 39 ना, 3 × 13, तो ये 1 1 हो गया, यानी 78 का आधा, 1/3 नहीं चाहिए यानी 2/3 चाहिए, एंड 1/13 नहीं चाहिए यानी 12/13 चाहिए। यही बात है, 1 माइनस, तो अभी ये हो जाना चाहिए, इससे खत्म, ये इससे खत्म, 3 4 में चला जाएगा, ये कितने में जाएगा, 13 6 में जाएगा, 13 6 में जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 24 ही आता है आंसर, ये किस्मत है अपनी। हाँ कहीं तो बोले सर तो 2 निकाले थे रैंडमली, दोनों 24 आ गए, मैं तो मार कराई 24, ये इंसिडेंटल है। ठीक है, सो देयर आर 24 numbers which are less than 78 and co-prime with 78, that is the answer। यहां तक बात समझ में आती है? नहीं 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 नहीं, अभी इसका सम और निकाल दो 24 नंबर का। मैं ये भेज दूंगा अभी, रुको। इन 24 नंबर का मुझे सम चाहिए, कैसे निकालें? ओके हम 2-4 नंबर नोट करते हैं 90 के ही। कहना इसे एक बचा था, एक बचा होगा, और क्या बचा होगा बताओ, 7 बचा होगा, और क्या बचा होगा बताओ, 11 बचा होगा, 13 बचा, ऐसे बचा होगा। अच्छा उधर, अब एक बार नीचे से आ जाते हैं, रिवर्स से आ जाते हैं, 89 बचा होगा, 87 बचा होगा, और क्या बचा होगा, 83 बचा होगा, 87 भी नहीं आएगा क्योंकि 7 15, 93 आता होगा,
अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ 73 कह रहा हूं मैं, 73 होता होगा, 83 भी आता होगा, 79 आता होगा, आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 79 आए, और क्या आएगा, 77. क्या आएगा, 77 आएगा। 90 के साथ कॉमन चाहिए, 90 में तो 90 में क्या है, दुक्की तिक्की पंजी, 77 में क्या है, 77 में 7 11 कुछ कॉमन थोड़ी ना है, प्राइम नहीं गिनने भाई, प्राइम होता तो फिर सवाल ही नहीं बनता। अब आपको मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था, ये देखो, इसका जोड़ कितना है, इसका जोड़ कितना है, इसका जोड़ कितना है, इसका जोड़ कितना है, ऐसे कितने नंबर हैं टोटल, 24, कितने जोड़े बनेंगे, 12, हर जोड़े का सम कितना होगा, हो गया आंसर 90 गुणा 12। इसका मतलब है, इसका आंसर है n इंटू, ठीक है, जो भी इसको 5 बोलते हैं बाई 2, सम 5 यहाँ पे 5 का मतलब है नंबर ऑफ numbers which are less than given number and are co-prime with a given number। कुछ मत ले इसको, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो श्रद्धा है, हाँ कुछ ही ले ले, तो अपना नाम लिख, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका ये है कि उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है नंबर ऑफ नंबर्स which are less than the given number and co-prime with a given number। 90 से छोटे सारे वो संख्याएं चाहिए जो 90 के साथ को प्राइम है, वो जितनी संख्याएं हैं उसको 5 बोलते हैं, मतलब 5 यहां नाम लिखा है मैंने, 5 जो भी, आ रही बात समझ में, एक बार किताब देना, एक बार कुछ रहता, एक मिनट ही चाहिए, बस 1 मिनट लगेगा, मेरे को चेक करना है कुछ, वो टॉपिक तो नहीं रह गया, यही है ना बेटा, हाँ आ गई, हाँ जी, और ऑनलाइन बच्चों कुछ है तो मुझे बताओ, इन द मीनवाइल मैं 1 सेकेंड बस, हाँ एलसीएम वगैरह कल करेंगे, आज नहीं हो पाएंगे, ये टाइम लगेगा, कहोगे तो, कहना नहीं है, अच्छा एलसीएम एचसीएफ तो कल ही देखेंगे, फैक्टर्स नंबर्स रिजॉल्विंग टू, पावर की पावर वो जो रहेगा निकालने में, ऐसा कुछ डायरेक्ट मेथड नहीं है, सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, हाँ जी ठीक है, बताइए आई बात समझ में, कुछ आज की क्लास समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? अब इसके अंदर जो बचा है एचसीएफ, एलसीएम और सक्सेसिव डिवीजन बचा है, हाँ आईजीपी भी बचा है, हाँ वो कल हो जाएगा, हाँ जी बेटा, ऑनलाइन एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू रिपीट, डू कोई रिपीटिशन रिवीजन? नो सर। ठीक है, आ गया समझ में बच्चे सभी को इसका मतलब, चलो ठीक है, मैं इसको क्लास को एंड कर रहा हूँ ताकि वो इसका वो वीडियो बन जाएगा, ठीक है सर, ये दोनों बैच में भेज देना, दोनों ग्रुप में, दोनों मतलब B1 में भी भेजना है, अच्छा चलो भेज दूंगा, ठीक है, डन डन डन, ओके।